Okay, so question was calculate the ratio of energies of photons having wavelength 2000 angstrom and 4000 angstrom. So let's say E1 is the energy when wavelength is 2000 angstrom. So how can I find out the value ratio निकालने के लिए? It is in the terms of lambda, energy is hc by lambda. And let's say with the second term it is E2, which is also going to be hc by lambda 2. Now we have to find the ratio, so let's not put the constant value. Lambda 1 is your 2000 angstrom and lambda 2 is your 4000 angstrom. And since we have to find the ratio here, so just divide these two energies, E1 by E2. So you will have Hc by 2000 angstrom divided by Hc by 4000 angstrom. This will be cancelled out and you will have angstrom will be cancelled out. 4000 divided by 2000, that is 2 is to 1. The ratio between these two energies will be 2 is to 1. Got it? Yes, ma'am. Everyone? Okay. Fine. Now next question is calculate number of photons emitted per second. Okay, you have to find out that how many photons are emitted per second. That means you have to find out the value of n. Having wavelength 2000 angstrom by a bulb of 60 watt. ठीक है, अभी एनर्जी की जगह यहाँ पे इन्होंने वोल्ट में दे दिया है, तो थोड़ा बहुत अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 60 watt tells you about the voltage. So when you have 60 watt, okay, watt is nothing but it is the unit of power. Power की unit होती है, and what is the definition of power? Power is energy per second. That is going to tell you about the power of the energy. So when I am saying 60 watt, it means that 60 joules of energy is there for that particular instrument and whatever you are taking, and it is giving you 60 joules of energy per second. So if I want to find out the energy, तो कितना हो जाएगा 60 joules, और टाइम कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड ओनली. So this will be 60 joules. यहाँ से हमको एनर्जी मिल जाएगा. Now energy is equal to एन एच सी बाई लैम्डा. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, उससे भी आंसर आएगा, बट आई विल गो फॉर शॉर्टकट. सो ई विल बी इक्वल टू एन इंटू 12400 डिवाइडेड बाई 2000 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, और जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्टली आई कैन कन्वर्ट इनटू joules, and for that what I can do, I multiply it with 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules, because I know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. So instead of multiplying it at the end, I am doing it here only. With this and this will be cancelled out. Okay, and here 1.6, you have to find out n ka value. Energy is given to you, that is 60 joules. यहाँ पे you have 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. Here it is n into, इसको डिवाइड कर दो, 2 6 are 12, 2 2 are 4, so that means n into 62 joules. joules कैंसिल आउट हो गया, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 62 इंटू, ये डिनोमीटर में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19. इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस प्लस 19, बिकॉज ये ऊपर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा.
Got it? Is this question clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. मैम एक बार रिपीट करोगे? 124 डिवाइडेड बाई 20 है क्या ये? अच्छा सॉरी, आई मिस्ड 10 नो। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको 20 कर दो, तो यहाँ पे बचेगा एक 10। ओके, इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देना। मैं यहाँ 10 रख देती हूँ, एक वैल्यू इतनी आएगी। आंसर विल बी दिस ओनली। हाँ हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। आंसर विल बी दिस मच ओनली। जस्ट कीप 10 here. Fine. Next question is calculate the number of photons emitted by a bulb of 100 watt having efficiency of 80% in 10 minutes. Okay, तो अभी efficiency हो गया कि it's not working 100%, it is working only 80%. Then what is going to happen? और 10 minute में, and wavelength of the photon is 301 nanometer. Okay, अभी let's first find out the energy, because energy is not given to you in per second. In the previous question, energy was given like 100 watt, okay, and efficiency was, excuse me, and efficiency was 100%. Here they are saying that it is 80%. So we have to solve the question like accordingly. So 100 watt means, excuse me, 100 joules per second. This is the definition of this power. It is only working for 80%, and for how much time? 10 minutes. So we will find out energy is equal to, it is 100 only, 100, but उसका how much percentage is working? 80%. बट कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे? 600 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी टोटल एनर्जी, which will be 4.8 into 10 raised to the power 4 joules. ओके, अब आगे करो क्वेश्चन, कैसे होगा? You just have to apply the shortcut, है ना? एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू 12400 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ नैनोमीटर में ध्यान रखना है कि यहाँ जब हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो वेवलेंथ इज इन एंगस्ट्रॉम, तो कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास। सो दिस विल बिकम 3100 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे एनर्जी जाउल्स में है, तो मुझे यहाँ पे भी जाउल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईवी में नहीं रख सकते। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल्स। ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करो एन के लिए, यू विल गेट द वैल्यू 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। गॉट इट? लिखो इसे।
Okay, so next topic is your ionization energy, like how to calculate ionization energy of an atom. We know that we have studied the ionization energy, its definition, and how it varies in the periodic table. But here we have to find, see how to find out its energy value. So next topic is ionization energy. Okay, so what is the definition of ionization energy? I told you there is one this nucleus and electrons are present here. So whatever amount of energy you are going to provide here to remove this electron, that energy is known as ionization energy. Sorry guys, I'm not well little bit. Okay, so there was one question, इसमें हम directly question solve करेंगे, and question is your ionization energy of an element is 288 kilojoules per mole. Calculate wavelength of photon required to just ionize the element. Solve this question. सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस क्वेश्चन में हो सकता है वो नॉर्मल एनर्जी की जगह आयोनाइजेशन एनर्जी कर दे. Then you should not get confused. So do this question. Okay, done. Okay, I think question should have been done by now. It's very easy. Sorry everyone. Okay, so we know that the formula of energy is equal to, that means E is equal to n एच सी बाई लैम्डा, है ना. नॉर्मल यही होता है. शॉर्टकट से हम करेंगे E इज इक्वल टू 12400 वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम और एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ओके, एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है. हियर यू हैव, ओके एनर्जी गिवन है, दैट इज योर 288, बट यूनिट है किलो जाउल्स.
पर मोल। ये हो जाएगा 12400। वेवलेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और यहाँ पे किलो जूल्स है, ध्यान रखना है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल्स पर मोल। आई हैव टोल्ड यू दिस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 96 किलो जूल्स पर मोल में, ताकि ये सब यूनिट वगैरह कैंसिल आउट हो जाए। और आपको ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का ही निकाला है तो n का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ से आप निकालोगे वेवलेंथ, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? 12400 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 288। ओके, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आई थिंक यू विल हैव 96 288, you will have 12400 divided by 3. 96 3 is 288. That means answer will be 4133 angstrom. अभी ऑप्शंस में अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं गिवन है एंगस्ट्रॉम में तो कन्वर्ट करो उसको एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, लेट मी नो। आई जस्ट गेव यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना कि क्या उसका कुछ अलग फॉर्मूला है, नहीं, फॉर्मूला इज सेम। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट bond energy and kinetic energy. ओके, अब मान लो मेरे पास ये बॉन्ड है ए और ए के बीच में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इस बॉन्ड की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी खुद की, ओके, इट विल हैव सम एनर्जी, कोई ना कोई वैल्यू होने वाली है, ओके। और इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, जिसमें ये कंप्लीटली एक दूसरे में ब्रेक हो जाए। सो ब्रेक होके क्या देंगे आपको, ए और ए सेपरेटली। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी x किलो जूल्स पर मोल। लेट्स से वी डोंट नो दी वैल्यू। अच्छा, अभी इफ आई प्रोवाइड द एनर्जी, यहाँ पे p का मतलब है प्रोवाइड, अगर जो भी मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ वो लेस देन है x किलो जूल्स पर मोल के, ओके, तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? टेल मी। विल द बॉन्ड ब्रेक? ऑफ कोर्स नहीं ब्रेक करेगा, है ना। यू कैन राइट डाउन देन bond will not break. ओके, फाइन। अगर सेकंड केस ये हो जाए कि जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इट इज जस्ट इक्वल टू x किलो जूल्स पर मोल, तो बॉन्ड ब्रेक होगा? यस और नो? विल द बॉन्ड ब्रेक? यस, ऑफ कोर्स, उसको उतनी एनर्जी मिल गई, सो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। थर्ड थिंग इज योर, अगर जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो x किलो जूल्स पर मोल से ज़्यादा है, देन आपके पास ऑफ कोर्स बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, ओके, बट जो बची हुई एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ओके। सो देन बॉन्ड विल ब्रेक एंड द रिमेनिंग एनर्जी will convert into काइनेटिक एनर्जी। तो हुआ क्या, आपने बॉन्ड को ब्रेक किया,
कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हुए होंगे, तो उसको मूव करने के लिए या फिर इनके पास खुद की भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए इनको, तो वो बची कुछ एनर्जी इसके मूवमेंट के लिए यूज हो जाती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि इस केस में कि कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी चेंज हुआ है, ओके, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आप क्या करोगे, जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी थी माइनस जितना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनटू 100। गॉट इट? एनी डाउट्स? चलो, अब आप छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, कुछ कॉन्सेप्ट एज सच बड़ा नहीं था, बट वही एनर्जी को आपको वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में पूछ सकता है। अब क्वेश्चन दे रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस is 384 kilojoules per mole. Calculate wavelength of photon required to break the bond of the substance. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड पार्ट ले लो। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ second part of this question is, if wavelength of photon is 2480 angstrom, then what percentage of energy of photon is converted into kinetic energy? सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। ओके चलो देखो इधर कैसे करना है। हाँ करेक्ट है संपदा, आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है। लिख दो, आपका भी करेक्ट है। दो ओके चलो देखो,
फर्स्ट पार्ट में आपको एनर्जी गिवन है, ओके, दैट इज, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, शॉर्टकट से कर रही हूँ, 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो मुझे फाइंड आउट करनी है एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट क्योंकि ये किलो जाउल्स में है तो मुझे 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम 380 किलो जाउल्स पर मोल इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा मुझे निकालना है, और इसको ईवी में था तो मैं कन्वर्ट कर दूंगी 96 से, ओके, 96 किलो जाउल्स पर मोल, अच्छा 384 है, ओके ओके ओके, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, जस्ट 12400 डिवाइडेड बाई 384 किलो जाउल्स पर मोल, किलो जाउल्स पर मोल को कैंसिल कर दो इंटू 96, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली सब कट कुट जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉम। गॉट इट, क्लियर है? अब कैलकुलेशन भी बताना है क्या, तो लेट मी नो, आई नो लाइक कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, है ना? दिस इज एक्चुअली 4 ज़ा, फिर 4 से इसको करो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 400, है ना, दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन इज। अच्छा, अभी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ फोटोन इज 2480 एंगस्ट्रॉम देन व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इतने वेवलेंथ की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देती, ये तो उसको नॉर्मली चाहिए ही, इतना तो चाहिए उसको कि बॉन्ड ब्रेक करे, बट अगर इतने की प्रोवाइड कर दूंगी तो ये ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो पहले मैं ई प्रोवाइडेड निकाल देती हूँ, तो कितना हो जाएगा 12400, और ये एंगस्ट्रॉम में ही है तो कुछ अभी करने की ज़रूरत है नहीं, सो 2480, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 ज़ा इज 1240, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हर केस में पहले वाले में भी हमने एनर्जी किलो जाउल्स में रखा था, इसमें भी किलो जाउल्स में कर लो, तो ये जो एनर्जी आई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96 किलो जाउल्स पर मोल से, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 48 किलो जाउल्स पर मोल। नहीं देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, सॉरी 348, तो 3 दूर थी ना, 5 6 नहीं नहीं एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 480 या 480, दिस विल बी 480 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जो भी ईपी आया था माइनस जो भी आपके पास पहले की एनर्जी थी, दैट इज 384 डिवाइडेड बाय टोटल 480 इंटू 100, तो ये हो गया 96 माइनस करके डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल कर दो, 48 टू ज़ा इज 96, 2 इंटू 10 इज 20%। समझ में आया? क्लियर है सबको? लेट मी नो इफ यू पीपल हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। चलो क्लियर है सबको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 384 ही होगा ना शुक्ति का,
परसेंटेज ऑफ एनर्जी निकालना है आपको. टोटल एनर्जी आपने 480 दी, बट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी तो 384 चाहिए ना. क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट पे ही बोला ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज 384. तो इतना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बट आपने प्रोवाइड कितनी करी, 480. तो परसेंटेज निकालना है कि कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ. तो वैसे ही करोगे ना. ओके. Write down emission of electron from the surface of metal by falling. 1 second. Okay, sorry guys. So emission of electrons from the surface of a metal by falling photon of suitable wavelength per energy is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. Okay. Now the emitted electron are known as photoelectron, and cell operates on the principle of photoelectric effect. Is known as photocell, and the current flown in cell is known as photoelectron. Okay, electron will only be released when its energy is greater than ionization energy. ठीक है, लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ. नहीं नहीं प्रज्ञा, एनर्जी को नहीं बोलते हम, करंट को भी नहीं बोलते. अभी लिखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट कंप्लीट इट. ओके, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट हमारे पास एक सेटअप है लाइक दिस. यहाँ पे एक मेटल है और लेट्स से दिस इज योर कैथोड टर्मिनल. ओके, एंड दिस साइड यू हैव एनोड टर्मिनल. दोनों को हमने यहाँ पे एक स्विच ज्वाइन किया हुआ है, एंड स्विच के अलावा दिस साइड वी हैव द बल्ब. ओके, अभी what the statement is saying that emission of electron from the surface of metal by falling photons.
तो इसके सरफेस पे कुछ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से इस मेटल को एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलने की वजह से ये जो मेटल का सरफेस है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं तो इधर नेगेटिव कर दो। तो जब इसमें एनफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, यहाँ से ट्रैवल करने लगेगा, तो दैट दिस बल्ब इज गोइंग टू ग्लो। Okay, so this is what it is saying. Emission of electron from the surface of metal by falling photons of a suitable energy या फिर wavelength. Suitable wavelength भी ले सकते हो, suitable energy भी ले सकते हो, is known as photoelectric effect. Now emitted जो आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया है, okay, this emitted electron is known as photoelectrons. This is known as photoelectrons. एंड द सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक। ये पूरा सेल हो गया, एक काम कर रहा है ना, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये पूरा सेल को आप बोलोगे फोटो सेल, ओके। एंड जो भी करंट फ्लो हुआ है इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके, उसको हम बोल रहे हैं फोटो करंट। इसको एक्चुअली फोटो करंट कर दो यार, डू इट एज अ फोटो करंट, तो उसको हम बोल रहे हैं फोटो करंट। अब अगर मुझे इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो या तो मुझे उतना एनर्जी चाहिए होगा जितना हम क्या कर रहे हैं, ये मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस को आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो उस आपको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मिनिमम कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाए। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो एटम का वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की आप बात कर रहे हो, ओके। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी जो प्रोवाइड करोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट आयनाइजेशन, सिर्फ अगर आयनाइजेशन एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं रह जाएगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ फोटॉन्स की एनर्जी देते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा देते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाए और वो काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करना स्टार्ट करे, उसको इनिशियल मूवमेंट मिले, ओके। सो वही आप लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विल ओनली बी रिलीज्ड, मतलब बाहर वो इलेक्ट्रॉन तभी निकल पाएगा जब जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इट इज ग्रेटर देन दी आयोनाइजेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर और नॉट? Okay, I hope this particular thing is clear to you people. Okay, इसको और थोड़ा सा अब कुछ टर्म्स हम इसमें देखेंगे, ओके। मान लो मेरे पास ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से होता नहीं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एज्यूम इट। यहाँ से आपने फोटॉन्स की एनर्जी दिया, तो जो सरफेस पे जो एटम्स थे उन्होंने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, ओके। एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर निकले। तो इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपी, मान लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपी, जो आप फोटोन दे रहे हो, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना, इससे ये ज्यादा एनर्जी देगा, दैट एनर्जी इज लेट्स से योर ईपी। देन इफ, अच्छा इससे पहले एक डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखाना भूल गई, वर्क फंक्शन लिखो पहले। तो ये लिखने से पहले जस्ट राइट डाउन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम amount of energy required to eject the electron from the surface of metal, okay।
तो इट्स नथिंग बट आयनाइजेशन काइंड ऑफ अ थिंग ओनली, वो सेम ही है, डिफरेंस नहीं है कुछ, बट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसको वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो अगर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज फाई। सो नाउ इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपी, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो ईपी है, देन इफ ईपी लेस देन 5 से कम है, तो ऑफ कोर्स नो फोटोन will be emitted. Okay, sorry guys, there was a network issue. So I was saying if energy is less than work function, no photon will be emitted. But if energy is greater than or equal to work function, then photon will be emitted. Write down this. ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो I have written down here work function of the metal is equal to ionization energy of the metal. ओके, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे को फोटो सेल क्रिएट करना है, आई वांट टू मेक अ फोटो सेल। उस फोटो सेल के लिए ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर पाएंगे, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा कम एनर्जी प्रोवाइड करने से, उतना ही अच्छा है मेरे लिए। तो कौन सा ऐसा मुझे मेटल लेना चाहिए विच विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल? Tell me which metal should I take that my photo cell becomes the best photo cell? Yes, like though your answer is right. Good. No, Ankit. I am saying that I want to make a photo cell, and if I want to make a good photo cell, which metal should I take? Which metal should I consider? Dhruv, your answer is wrong. Suhan, you're correct. Jaita, your answer is correct.
Okay, of course. Take it, let me tell you. Let me first write down the question. Which metal will be most suitable for photo cell? The answer is cesium. Cesium is the most suitable one. क्यों? आपको इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करना है. आसानी से रिमूव करने के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी मुझे ज़्यादा ना देनी पड़े, इतना एनर्जी प्रोवाइड ना करना पड़े. तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. ऑफ कोर्स cesium is the best metal which I can take to prepare a photo cell. Yes or no? Okay, not lithium. Lithium will also be good, but of course cesium will be the best one. Okay, let's write down next definition. This is your threshold frequency. It is represented as mu naught. फ्रीक्वेंसी की बात हो रही तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड को म्यू नॉट से. व्हाट इज द डेफिनेशन? Minimum frequency required to eject the electron from the surface of metal is known as threshold frequency. ओके, सो व्हाट इट इज सेइंग. अच्छा, अभी जब आप मेटल के सरफेस पे फोटॉन्स को पुट कर रहे हो तो ये जो फोटॉन्स आ रहा है, इस फोटॉन्स की खुद की कुछ वेवलेंथ है, खुद की कुछ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है. इन्हीं मतलब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वेवलेंथ, कोई भी आपको ये जो लाइट दिख रही है आपके घर पे ट्यूबलाइट है, इसकी भी खुद की कुछ एनर्जी है, खुद का कुछ वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है. तो अगर एनर्जी के टर्म्स में गिवन है तो इजी है. एनर्जी के टर्म्स में नहीं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में गिवन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो. वेवलेंथ के टर्म्स में गिवन है तो उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करो. जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है. तो फ्रीक्वेंसी भी आपको दे सकता है एंड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन आपको आता ही है, वही यूज करना है. नेक्स्ट इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट. डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम wavelength required to eject the electron from the surface of metal. अच्छा, अब ये बताओ, फ्रीक्वेंसी के लिए आई हैव टेकन मिनिमम और वेवलेंथ के लिए आई हैव टेकन मैक्सिमम. व्हाई? Why I am taking for threshold minimum frequency and for wavelength I am taking maximum wavelength? Yes, दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स है. अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मेरे को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मेरे को मैक्सिमम लेना पड़ेगा. ओके, सो यस, गुड, fine. So this is about few definitions, that is your threshold frequency and threshold wavelength. अभी अगर मुझे फाई का वैल्यू निकालना है, दैट इज वेव फंक्शन, वो कितना हो जाएगा? एच म्यू नॉट, है ना? फॉर, क्योंकि वर्क फंक्शन का भी डेफिनेशन क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन. So I have to find out here
Okay, am I audible to you everyone? Just let me know. Okay, fine. Sorry, there was a network issue. Okay, so if I want to write down the phi is a work function, and work function is nothing but energy only. And when we are talking about for threshold value, it will become h nu naught, and here it will be equal to hc by lambda naught, because nu and lambda are inversely related. Okay, fine. So these are few very simple terms. Now let's do few questions. If work function of the metal is 3.1 electron volt, then calculate mu naught and lambda naught. Very simple question. Solve this question. चलो मैं सॉल्व कर रही हूँ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. वर्क फंक्शन है, एनर्जी है. कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ और पूछ रहे हैं. वर्क फंक्शन एनर्जी पूछ रहे हैं. तो आपको पता है एनर्जी के लिए शॉर्टकट का फॉर्मूला पता है 12400 वेवलेंथ नॉट इन एंगस्ट्रॉम. कुछ भी ले लो, नॉट हो, सिंपल हो, शॉर्टकट यही है. अब ये फॉर्मूला लगा लो. एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए. एनर्जी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस विल बी 12400 लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम, और ये ईवी है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट निकाल लो. तो कितना हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 3.1. ईवी ईवी कैंसिल हो गया. अभी इसको सॉल्व करोगे तो 31 फोर्जा हो जाएगा, है ना. तो सॉल्व करके वैल्यू विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम. सो दैट विल बी, इसको फोर्जा कर लो, तो ऑल टुगेदर जब सॉल्व करोगे तो कंप्लीट करके 4000 आ जाएगा. अब फॉर्मूला तो सेम ही है ना बेटा, डिफरेंट थोड़ी है. ये सेम. अच्छा, इसकी बात कर रहे हो संपदा, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हो, आप करो ना, नो इश्यूज, उससे भी आ जाएगा आंसर. बट उधर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी. देन मुझे मत बोलना मैम सॉल्व नहीं कर पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है. दैट इज वाई आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला. दिस इज द ओनली रीजन. एंड ताकि आप कैलकुलेशन अपना इजी कर लो. इससे सॉल्व करने बैठोगे तो अभी अगर आपको एच न्यू नॉट निकालना पड़ता, खैर यहाँ पे तो इजी वैल्यू है, ये तो 3.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे एच के वैल्यू को, बट लैम्डा निकालने में फिर दिक्कत हो जाएगी. फिर सी का वैल्यू पुट करो, उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये इजी नहीं लग रहा सॉल्व करने में. आई एम जस्ट सेइंग विच इज लाइक इजी फॉर यू. Okay, so now we know the value of a lambda naught, so we can find out the value of nu naught also now, है ना. तो आपको पता है लैम्डा और न्यू को हम किस तरीके से रिलेट करते हैं. दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट. ओके, और हमको लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी पता है, और सी तो कांस्टेंट है, तो न्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई लैम्डा नॉट. सी कितना है
3 into 10 raised to the power 8 लैम्डा नॉट कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा ये है मीटर पर सेकंड में और ये है एंगस्ट्रॉम में, तो क्या करना चाहिए? क्या मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ? इस तरीके से, लेट मी नो। नहीं कर सकते हैं ना, तो वही ध्यान रखना है कि आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा सिंपली डिवाइड नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा आंसर। 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। मैं आपको सारे कन्वर्जन्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मीटर है, ये है मीटर पर सेकेंड। वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, या फिर हर्ट्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा मैं एक और छोटा सा, कोई डाउट है क्वेश्चन में तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन लेट मी नो, कि कहाँ से क्या वैल्यू आई, कन्वर्जन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट आल्सो यू कैन लेट मी नो। क्लियर है ना सबको? भाई हाँ ना कुछ बोलो तो पता चलेगा क्लियर है या नहीं है। रेज योर हैंड एटलीस्ट सो दैट आई वुड नो। है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्लास में, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा और आप भी स्क्रीन के सामने बैठे बैठे बोर फील करोगे। तो जस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है चलो, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर दूँ देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? टेल मी। अगर वेवलेंथ को मैंने बढ़ाया तो क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा? यस संपदा, गुड। एनीवन एल्स? संप्रदा वो 15 नहीं होगा एक्चुअली, ये 0.75 आएगा ना। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 कुछ वैल्यू आएगा, तो मैंने वो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। 7.5 इसको शिफ्ट कर दिया डेसिमल को, तो ये 14 हो गया। ओके ओके। अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। अगर वेवलेंथ बढ़ा तो मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। और एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज हो रही होगी, इसका क्या मतलब है? क्या आप इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से रिमूव कर पाओगे? अब नहीं, क्योंकि एनर्जी तो कम हो रही है। तो ध्यान रखना है कि इफ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि वो वर्क फंक्शन भी कम हो गया तो अब नहीं रिमूव हो पाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर मैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करूंगी यहाँ पे, तो अगर वेवलेंथ ग्रेटर है वेवलेंथ नॉट से, तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। ये वेवलेंथ के टर्म्स में, अभी तक हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। अगर वेवलेंथ लेस देन या इक्वल टू है लैम्डा नॉट के, देन ओनली इट विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके ऐसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। तो अगर जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कम है न्यू नॉट से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं पीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके अगर वेवलेंथ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है वेवलेंथ के, देन इट इज गोइंग टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिफरेंस समझ में आया? यस और नो?
किसी के भी रेस्पेक्ट में पूछ सकता है ये सब चीज़ें, एनर्जी के रेस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, जो भी उसका मन करे। आपको हर की चीज़ में ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी है, ठीक है, तो जो भी बची खुची एनर्जी है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। जस्ट राइट डाउन हियर, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन EP is greater than वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट्स नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ओनली, बट हम जनरल टर्म्स में वर्क फंक्शन के टर्म्स में ही इसको बोलेंगे। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, then remaining energy will be converted into kinetic energy of emitted photo इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें इसको दोबारा एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, जो भी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है -5, है ना, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। एनर्जी प्रोवाइड क्या होगा, एच न्यू, और वेव फंक्शन कितना होगा, सॉरी वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट। ओके, यहाँ से एच को कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में निकालने के लिए। इसको अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में करें तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, इसमें भी एच सी को कॉमन ले लो, सो 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। यस और नो, इज इट क्लियर? वेरी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो इसके बेसिस पे। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron when a photons of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करो, जस्ट 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलो सॉल्व कर रही हूँ मैं। ओके, चेक करो। फाई का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइडेड के लिए आपको वेवलेंथ गिवन है, वहाँ से एनर्जी निकाल लो। मैं शॉर्टकट लगा रही हूँ, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि यही करो। 12400 डिवाइडेड बाई 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हमको बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा जगह बॉक्स बना के लिखा भी था। इसको सॉल्व करोगे
तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा सॉल्व करके। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, 4.1 EP minus 5 that is 3 electron volt. So answer will be 1.1 electron volt. Okay, very easy question. इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा, इट विल बी डन. नाउ राइट डाउन वन स्मॉल नोट हियर. Like above formula of kinetic energy is applicable for maximum kinetic energy and sum of the emitted photoelectrons may have kinetic energy less than this value. है ना. What does this statement says कि यहाँ पे जो सरफेस है, हमने इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकाला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जितना चाहिए था रिमूव करने के लिए, जो भी बचा उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही हो, उसको बस बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम वैल्यू चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो वो ये मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है. इससे हो सकता है कि चलो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1.1 है, तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, ये सब ज़्यादा होंगी. मतलब इतना जो डिफरेंस है, ये सब से भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं. बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 1.1. तो वही बोल रहे हैं कि जो हम ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू. थोड़ी कम भी वैल्यू हो सकती है. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड. और हो सकता है किसी किसी इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी जीरो ही हो, है ना, तो वो तो सिर्फ निकला बाहर और फिर वहीं पे रह गया, मूव नहीं किया क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं थी. तो टोटली डिपेंड करता है. ओके, तो minimum energy of photoelectron can be zero also. So it can vary from, जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम से भी हो सकती है और यहाँ पे ज़ीरो से भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. बट क्वेश्चन में आपको हमेशा मैक्सिमम ही निकालना होगा, तो आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है. राइट डाउन दिस. देन सेकंड पॉइंट जो आपको नोट्स में ध्यान रखना है दैट इज योर इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया in per unit time is known as intensity of radiation. ठीक है, आपने ऐसे सुना होगा कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है लाइट की, इसकी इंटेंसिटी कम है. तो उसका क्या मतलब है कि जो भी आपके पास ये सरफेस है उसमें पर यूनिट एरिया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, जितना भी हम एरिया कंसिडर करें, इस पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड पर मिनट कितने फोटॉन्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर इंटेंसिटी. ओके, एंड फोटो करंट जो है डिपेंड्स अपॉन intensity of
radiation, while kinetic energy of photon photoelectron कर दो चाहे तो kinetic energy of photoelectron depends upon wavelength, that means frequency और wavelength of radiation. तो इन सबसे कंफ्यूज नहीं करना है. फोटो इलेक्ट्रॉन जो भी निकल रिमूव हो रहा है वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बट कितना करंट पास होगा उसमें से, फोटो करंट कितना पास हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं. गॉट इट? अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे इंटेंसिटी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके, तो इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी. ओके, तो इस टाइप का आपको कर्व देखने को मिलेगा. काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, हम मैक्सिमम कंसिडर करके चल रहे हैं. अब जितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. ऐसे अगर मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, इधर काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो ऑफ कोर्स आपको पता है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी एनर्जी है आपके पास वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बोल सकते हो. तो इस तरीके से कर्व आएगा. जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की कभी जीरो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर रही होगी. जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू नॉट से. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron when photons of wavelength 410 nanometer falls on a metal is 4 electron volt. Calculate phi, mu naught and lambda naught. Solve this question. Correct answer आपका ध्रुव. Good. I think now you people are getting some pace of solving the questions, है ना. थोड़ा फर्स्ट चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा था, सेकंड चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, अभी धीरे धीरे यू आर गेटिंग यूज टू इट. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, ओके, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन of photoelectron when photons of wavelength 410 nanometer falls on a metal is 4 electron volt. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 4 eV. ठीक है, अभी हमको निकालना है ईपी. ईपी के लिए वेवलेंथ आपको गिवन है, शॉर्टकट लगा दो 12400 डिवाइडेड बाय 4100. ध्यान रखना नैनोमीटर में है, मैं एंगस्ट्रॉम में करने के लिए 0 से 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 41 कितना आ रहा है वैल्यू, 4 आ जाएगा ना, नहीं 3 आ रहा है. ठीक है,
So you will have here 3 electron volt. Okay. Of course, अब आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EP माइनस 5. ओके, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, EP कितना है आपके पास टोटल 3 और 5 आपको फाइंड आउट करना है. तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में आ रहा है क्या, ऐसा कैसे हो गया, 1 सेकेंड. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या. Dhruv, you have got one EV in positive or negative? Let me know. नेगेटिव आया ना, ठीक है. ठीक है, एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती बेटा, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो. ठीक है, वी कैन नॉट हैव द वैल्यू एज नेगेटिव, नेगेटिव नहीं कर सकते अपन. इसको यहाँ पे कर दो 2 EV और बाकी सब तो ठीक है. तो यहाँ पे जब आप 5 का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, आपको वेवलेंथ निकालना है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा सब कुछ. यहाँ से लैम्डा नॉट निकाल लो, सिंपल. कितना आया, 12400 एंगस्ट्रॉम. अब आपने लैम्डा नॉट निकाल लिया, फाइंड आउट कर लो न्यू नॉट. न्यू नॉट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ दैट इज C डिवाइडेड बाई, अब ये मीटर पर सेकेंड में होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻6 विच विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. अब सॉल्व कर लेना इससे आगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन में कैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, so today's class will be till here only.